me a little. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. So today the topic that is allotted to me is attitude and self-perception. Now both these things are very important from personality point of view, as told by Muktai ma'am also. जब हम मैं attitude बोलती हूँ, what is meant by attitude? It is a very common word जो हमें common मतलब लाइफ में काफी बार सुनाई पड़ता है. Attitude से आप क्या समझते हैं? You have to interact with me that because ये कोई ऐसे technical topic नहीं है. But then you have to speak so that we can interact and I can solve few queries as well. What is attitude? जब मैं बोलती हूँ attitude का क्या मतलब होता है? Okay, attitude basically means हमारा रवैया किसी चीज के लिए. Okay, रवैया किसी भी चीज के लिए, that can be an object, a situation or a person. And self perception means हमारी धारणा खुद के लिए. Okay, what we think about ourselves. If we think about ourselves as very low and weak, तो automatically that will हमारे behavior में reflect होगी. So attitude is a mental state of mind जो हमारे behavior में reflect होता है. Likewise, self-perception is also a mental state that is reflected through our behavior, right? So रवैया और attitude एक ही है. हमारा एटीट्यूड किसी चीज के लिए पॉजिटिव होता है, किसी चीज के लिए नेगेटिव होता है, राइट? सो हियर वी विल बी इन दिस लेक्चर आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोर हाउ टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हिच विल हेल्प इन एनहांसिंग योर पर्सनालिटी. ओके, so the first slide says, what do you see here? What do you see here? It is a glass of water. Okay, how will you comment on this picture? It's a very common thing, आपने पहले भी सुना होगा. ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? एक ग्लास है, उसमें आधा भरा है कि आधा खाली है? एनीबॉडी? Yes. Ma'am, there is one glass of water which is हाँ, half filled and half empty. तो how will you perceive it? मतलब आप क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड है कि हाफ एम्प्टी है? Filled. As a half full, like filled. half filled, we can consider it as a present situation we are living in. So, Yes. and as a upper one, it's like it's air, so we can perceive it as we can gain more and more knowledge to make the glass full. Full, very good. So basically the glass is half full. There are people who are going to say that is half empty. So हमें पॉजिटिव तरफ देखना है कि नेगेटिव तरफ देखना है, that will be decided by our attitude. And attitude is always a matter of choice. कोई मैं कितना भी आज के लेक्चर में बता दूं have positive attitude, कितना भी importance बता दूं, ये आपके ऊपर है कि how you are going to pursue it, how you are going to keep your attitude always positive even in atrocities of life or adversities of life. Okay, so that is always a matter of choice. Okay, now what do you think? ये क्या है? ये एक एनिमल है. कैन एनीबॉडी कमेंट? जब आप इसको देखते हैं तो क्या दिमाग में आता है सबसे पहले? इट्स अ डोंकी. यस, जब भी आप डोंकी देखते हैं, व्हाट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट? व्हाट डू यू थिंक? It does all the hard works, but does Okay. not get the profit. Okay, So does we not should get. do smart work, not hard work. Okay, it is a very hard working animal. Okay, but it does not get the required credit. Okay, what else? जब ये पहली बार देखते हैं तो क्या मतलब क्या दिमाग में आता है सबसे पहला इंप्रेशन? इसका इम्प्रेशन मैम ऐसे बना के रखा हुआ है आई मीन हाँ. अब तक के कि हाँ. किसी को इनफैक्ट मतलब अगर किसी का कंपैरिजन करना हो जिसको कुछ समझ में नहीं समझ आता में. है यस. तो उसको अरे ये तो गधा ही है, तो इसका हाँ. इस एनिमल एक्चुअली इट्स हार्ड वर्किंग एनिमल बट इसका इम्प्रेशन ऐसा बन चुका है. हाँ, इम्प्रेशन बन चुका है. हमारा एटीट्यूड इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ है, क्योंकि हम इसको एसोसिएट करते हैं उन लोगों के साथ जिनकी शायद थोड़ा मतलब जिनको जल्दी समझ में नहीं आता, तो हम उनको उसके साथ तुलना कर देते हैं, यार ये तो गधा है पूरा. होता है हमारे साथ, हमारे छोटे भाई बहन होंगे या फ्रेंड्स होंगे जिनको जल्दी समझ में नहीं आता. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, इट्स अ डोंकी. It is good for nothing. It is a useless animal. It is least glamorous, taken for granted एनिमल. ये सब आते होगा आपके दिमाग में यदि हम इस जानवर के बारे में सोचते हैं. बट सेल्डम वी गेट रिस्पॉन्स दैट द डोंकी इज वन ऑफ द हार्ड वर्किंग एनिमल एंड अ लॉयल एनिमल.
So likewise we develop attitude. हमने डोंकी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड क्यों डेवलप किया है? क्योंकि हमने शुरू से वैसा सुनते आए अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, मे बी, कि जिनके पास बुद्धि नहीं है वो गधे होते हैं. ओके, तो हमारे दिमाग में भी वो नेगेटिव एटीट्यूड आ गया है टुवर्ड्स डोंकी. ओके, so we treat people and situation in the same manner as we do with the donkey. Is it? हम सिचुएशन में भी मतलब हम परसीव कर लेते हैं पहले से ही कि ये मेरे से नहीं होने वाला. मतलब वी लाइक जैसे हमारा परसेप्शन या एटीट्यूड डोंकी के लिए नेगेटिव है, वैसे ही हमारा परसेप्शन लोगों के लिए भी नेगेटिव होता है. जो लोग थोड़े से हाई फाई या फिर बोलते हैं कि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, उनके लिए होता है लाइफ में. कुछ लोगों के लिए हमारा एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है, कुछ सिचुएशंस के लिए एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है. एंड सेकेंडली जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वी डिस्काउंट द गुड इन पीपल. काम निकल गया, लोगों को हम अपनी भी थ्रो देम आउट ऑफ अ लाइफ, है ना. डोंकी से भी काम निकल गया. इज इट अ पेट एनिमल? हाँ, कुछ पार्ट्स में होगा डोंकी, बट नहीं, मतलब ऐसा बहुत शो के लिए, जैसे लाइक वी पेट एनिमल वी कंसिडर एज अ डॉग, अ कैट, मे बी अ पैरेट. पर बहुत कम लोगों को देखा है डोंकी पालते हुए. क्यों? क्यों इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ पेट एनिमल? फार्म्स में होंगे जहां पर बहुत लेबोरियस काम होता है, बट यूजुअली घर में नहीं रखते. क्यों? Anybody? Ma'am, because it's not considered as a prestige. It is not considered as up to the mark. कोई डोंकी पालता है क्या? Likewise हमने भी लाइफ में बहुत से ऐसे मतलब पीपल हैं और सिचुएशन है जिनको हम सिर्फ एक नेगेटिव एटीट्यूड की तरह उनको ट्रीट करते हैं. ओके, काम निकल गया, वी थ्रो देम आउट ऑफ आवर लाइफ, वी ऑलवेज सी गुड इन देम. जितना उनसे आप निचोड़ सकते हैं, बोलूंगी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वी एक्सप्लॉइट देम. काम निकल गया, you just leave them. So we only look at the negative side and we start reacting. बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं. ओके, हम पैनिक कर जाते हैं जब एग्जाम, क्योंकि हमने साल भर पढ़ते नहीं है. ओके, तो जब एग्जाम का समय आता है तो यू स्टार्ट पैनिकिंग. वहीं कुछ लोग होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं एंड दे मेक जुडिशियस यूज ऑफ देयर टाइम. ओके, इन दोनों में बहुत अंतर है, राइट. लाइकवाइज बहुत सारे हम जो गलती करते हैं इज वी सी गुड इन पीपल, वी एक्सप्लॉइट देयर गुडनेस एंड देन वी ऑलवेज लीव देम, वी लुक एट द नेगेटिव साइड एंड स्टार्ट रिएक्टिंग. ओके, बट ये सबसे बड़ी गलती है जो एटीट्यूड में हम करते हैं. तो लेट अस नाउ कम टू व्हाट इज एटीट्यूड. एटीट्यूड इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड. एक ये हमारी मेंटल सेटअप है एटीट्यूड, जो हमें मतलब जो हमारे बिहेवियर के थ्रू बाहर वाले देख सकते हैं. ओके, ये एटीट्यूड एक दिन में नहीं बनता. जिस दिन से हम इस दुनिया में आए हैं वी स्टार्ट डेवलपिंग एटीट्यूड. ओके, कुछ चीजों के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, कुछ चीजों के लिए नेगेटिव होता है. से फॉर एग्जांपल आई कैन से कि आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योगा. मतलब योगा करने से बॉडी अच्छी रहती है, एक्सरसाइज रोज करने से बॉडी अच्छी रहती है. एट द सेम टाइम आई हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव एंड एटीट्यूड कैन बी नेगेटिव. Okay, so it is basically a state of mind, our mental setup. It is the way you look at things. Okay, attitude can be either favorable or it can be unfavorable. That is, it can be positive attitude or it can be a negative attitude towards an object, event, or a person. Now, I want someone to tell me a positive attitude that you have towards a thing and a negative one. Anybody? That you, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, I have a positive attitude towards exercising, towards yoga because it keeps you healthy, it keeps you fit. At the same time, I have a negative attitude towards smoking. Okay, so can you interact with me and tell me more about it? What positive things you have in your mind? What negative things you have in your mind? I have positive attitude towards challenge and negative attitude against giving up. Very good. Okay. Anybody else? Just one more. Ma'am, I have a positive attitude. Yes, Mansi speaking. Who is speaking? Mansi, Mansi, you're not audible. Yes, ma'am, Mansi. Yes.
Hello. Yeah, Mansi, please carry Yes, on. ma'am. Positive attitude towards learning and negative attitude towards smoking and drinking. Okay, yes, and there was one boy who wanted to speak. Yes, ma'am. I have a positive attitude towards physical fitness and Yes. negative attitude towards negative thoughts. ओके, वेरी गुड. सो हमारा एटीट्यूड कुछ चीजों के लिए पॉजिटिव होता है, कुछ चीजों के लिए नेगेटिव होता है. ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदे में हर चीज पॉजिटिव होती है और नेगेटिव एटीट्यूड वाले बंदे में हर कुछ नेगेटिव होती है. हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव होता है हमारी चॉइसेस से, हमारे गोल से. ओके, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं उससे. ओके, तो दैट डिसाइड्स कि आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? ओके, सो व्हाट वी डू इज, सबसे बड़ी गलती हम लाइफ में करते हैं, हम कभी भी कोई सिचुएशन के जब सामने आते हैं तो वो इमीडिएटली वी रिएक्ट टू द सिचुएशन. वी एक्ट फर्स्ट, देन वी स्टॉप एंड देन वी थिंक, है ना? हम इमीडिएटली, एग्जाम्स आ रहे हैं, वी स्टार्ट रिएक्टिंग, वी स्टार्ट पैनिकिंग. ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई सामने से लाइक बड़ी व्हीकल आ रही है, वी स्टार्ट पैनिकिंग, वी स्टार्ट रिएक्टिंग, वी स्टार्ट एक्टिंग, राइट? बट देन लाइफ में बहुत सारी एडवर्सिटीज आ रही है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं. अभी पैंडेमिक वाज वन ऑफ द सिचुएशन, अभी कोविड पैंडेमिक वाज वन ऑफ द सिचुएशन जहां पर कितने लोग मतलब इवन यदि वी टॉक अबाउट माय फैमिली तो इट वाज एन एनवायरनमेंट ऑफ पैनिक. Okay, but then you have to act. What you do in haste, you act, you stop and then think. जबकि उल्टा होना चाहिए, think करके हमें act करना है. Okay, we act without thinking. That is one of the major reason for having a negative attitude. और उसके बाद जब हम react कर देते हैं, then we start thinking नहीं यार, उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी. So for example, when you talk to your parents, sometimes ऐसा होता है, argument हो जाती है और आप गुस्से में कुछ तो भी बोल के निकल जाते हैं, है ना? उसके बाद we stop and when we think यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, they are our parents, तो you start feeling guilty. होता है ना, सबके साथ होता होगा, बिकॉज हम इतना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर देते हैं बिना सोचे समझे. फ्रेंड्स के साथ भी होता होगा, टीचर्स के साथ भी होता होगा. ओके, बट हम ये नहीं सोचते उस एक्शन का क्या रिपरकशन होने वाला है जो पार्टीज इन्वॉल्व है, कि दे कैन बी योर पेरेंट्स, दे कैन बी योर सिबलिंग्स, दे कैन बी योर फ्रेंड्स. Okay, so the thing is that whenever you are acting on something, think first. क्या ये सही है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो सही है? क्या इससे जो मेरे अपने लोग हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे बोलने से? ओके, सो यू नेवर गिव योर सेल्फ अ चांस टू फील गिल्टी. क्योंकि हम जब बिना सोचे समझे एक्ट कर देते हैं, फर्स्ट वी टेक एक्शन, देन वी स्टॉप एंड देन वी थिंक एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट आवर बिहेवियर. ऐसा क्यों कर दिया यार मैंने, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था. Okay, and that is why others says that he has or she has an attitude problem, क्योंकि हमने बिना सोचे समझे एक्शन कर दिया. राइट, होता होगा सबके साथ, हेस्ट में, गुस्से में हम वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं. इसको कहते हैं बेसिकली एटीट्यूड प्रॉब्लम. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स 10-90% रूल ऑफ एटीट्यूड. 10% atrocities, 10% adversities हर की लाइफ में होंगी. Now, this 10% comprises of health issues, financial problems, okay, parents conflict, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं बन पा रही है थ्रू योर विथ योर फ्रेंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट. 10% प्रॉब्लम हर की लाइफ में रहती है. इवन आई विल से अंबानीज आल्सो हैव प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ. प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, बट 90% हमारे ऊपर है कि हाउ वी रिएक्ट एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम्स. आप यदि सिर्फ प्रॉब्लम्स में ही घुसे रहेंगे, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप कभी प्रॉस्पर नहीं कर सकते. 10% बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स आने वाली है लाइफ में, बट 90% यू हैव टू, मतलब हम उस अट्रॉसिटीज को, उस एडवर्सिटीज को कैसे रिएक्ट करते हैं. ओके, इट कैन बी इल हेल्थ ऑल्सो. कुछ लोग देते हैं हमेशा सिर्फ बीमार है मैडम, नहीं कर पाए असाइनमेंट. ओके, दीज आर एक्सक्यूजेस. बीमार है, बीमारी मतलब ओके, मैं नहीं कह रही, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई.
ओके हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स में ही खोए रहना इज नॉट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. यू हैव टू मेक योर प्रॉब्लम्स एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 90% हमारे हाथ में है कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है. Okay, so this was about 10 and 90% of attitude. ये हमारे ऊपर है कि हमें उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है. क्या उसको हमेशा प्रॉब्लम ही बना के रखना है कि उसका पॉजिटिव साइड भी देखना है. आप जितना उसको प्रोलॉन्ग करोगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होती जाएगी. So basically इतना मान के चलिए 10% हर की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, बट सक्सेसफुल वही होते हैं जो वो 90% का यूज करके आगे निकले. I hope I'm clear. Any issues, any queries by far? Anybody think you want to ask here, or shall we proceed? Ma'am, I want Ma'am, to I ask. want to Yes, yes, yes. Okay. Please carry on. So usually जैसे कि जब एटीट्यूड की बात होती है तो यूजुअली बोलते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. Yes. But ma'am, actually, if we ask ourselves that we are perfectly positive or are we perfectly fine, so answer is no. So everybody have, I mean, हर किसी में कुछ ना कुछ imperfection होते हैं. So होता है according ना. to me, it should be take positive from people and अपने आप को better बनाते चले जाओ. Staying away from negative people is not a solution. Like because any which way हम लोग उस situation को किस तरीके से adapt करते हैं और उनमें से कौन से qualities accept करते हैं वो अपने ऊपर है. ओके दैट इज ऑल्सो ट्रू कि हम उनको एकदम इग्नोर नहीं कर सकते नेगेटिव पीपल को, बट उनसे जो सीखने की चीजें ओके वो सीखिए. मैं ये नहीं बोली जैसे डोंकी वाले एग्जाम्पल में आपने गुड लिया और उसको छोड़ दिया. ओके ऐसा करना भी गलत है. एक्सप्लॉइट किया अगले को, उससे पूरा काम करा लिया. यू डिस्काउंट गुड इन पीपल एंड देन यू लीव देम वन डे, दैट इज ऑल्सो बैड. ये आपके ऊपर है, बिकॉज 90% इज अप टू यू हाउ टू टेक गुड फ्रॉम पीपल. Yes, that is. Yeah. I am not saying that we have to use them and we have to leave them. I am Yes. saying that we should take good qualities from them and we have to accept them as they are. Yes. It's And not the solution that we are leaving everybody because and we are staying away from the people. That is not the solution. yes. Solution. I mean, it's my opinion. I No, don't want it's to true. It's offense. true, Amisha. Okay, it's very true. You have to learn from people. उनकी में जो अच्छी बात है. अब देखो, if your boss is having a bad attitude, can you leave him? मतलब like उनसे उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, उनको छोड़ भी नहीं सकते. ओके तो जितना उनसे सीखना है, उनके अंदर कुछ तो पॉजिटिव होगा, उनसे सीख लें. ओके तो दैट इज ऑल अप टू यू हाउ टू यूज 90%. क्या लेना है, क्या सीखना है, कैसे रिएक्ट करना है. 10% एट्रोसिटीज हर की लाइफ में रहेंगी, बट उससे Exactly. क्या सीखना है वो आपके ऊपर निर्भर. देयर वाज वन सम बॉय हु आल्सो वांटेड टू स्पीक. Ma'am, I want to ask about that 10% is what happens that one, ma'am. That What one. happens is the 10% is basically the problems in life. The problems can be in terms of your health, or maybe in terms of financial issues, और मे बी पियर्स अपने कलीग्स के साथ नहीं जम रही है, बॉस के साथ नहीं जम रही है. ओके फैमिली कंफ्लिक्ट हो रहा है. कोई ना कोई प्रॉब्लम हर की लाइफ में रहती है. तो मैंने कुछ ही एग्जांपल्स दिए, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. 10% it says 10% is what happens that is beyond our control, but 90% is under our control. है ना. हम प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं. प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. जो प्रॉब्लम आनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये आपके ऊपर है क्या उसे कंट्रोल करना? No, ma'am. यस तो 10% प्रॉब्लम आनी ही है, बट 90% हमारे हाथ में उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलकर उसे अपॉर्चुनिटी बनाएं. ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. एक एम्प्लॉय है, वो हमेशा अपने ऑफिस जब जाते हैं तो वो लेट हो जाता है. ओके एंड एवरी टाइम व्हेन हिज बॉस आस्क व्हाई यू आर लेट, ही ब्लेम द ट्रैफिक. कि ट्रैफिक इतना है सर, क्या बताएं, मतलब कितने बजे भी निकलो लेट ही होते हैं. How will you comment on his attitude?
What is your comment on his attitude? He is all the time blaming the traffic. Sir, बहुत ट्रैफिक हो जाता है उस समय. बताइए, what would you comment on his attitude? Anybody? Anybody? Yes. His attitude is basically negative. He's blaming his own faults on others. He's blaming. थोड़ा घर से जल्दी भी निकला जा सकता है. 1, 2, 3 बार लेट पहुंचते हैं, समझ में आता है. Every day you are blaming the traffic only. Okay, so his attitude is मतलब अपनी जो क्या गलतियां हैं वो छुपाना और किसी और पर डालना. ट्रैफिक के कारण हर बार लेट हो जाते हैं, things like that. Okay, so this is basically having a negative attitude. You're blaming your own faults on others. I hope this is clear. Yes, ma'am. But Yes. Yes. Any doubt, anybody? Okay, we'll move further. ये क्या है, सबने देखा होगा. What is this? It's written also. It's an iceberg. ओके, हम आइसबर्ग का सिर्फ 10% हिस्सा देख पाते हैं. 90% हिस्सा सी लेवल के नीचे रहता है. वैसे ही हमारे पास हाथ भी रहता है. हम जो हैं, हम जो बिहेव करते हैं, लाइक जो हमारी नॉलेज एंड स्किल है, जो दूसरे देख पा रहे हैं, वो सिर्फ 10% हिस्सा है हमारी पर्सनालिटी का. बाकी जो हिस्सा वो नहीं देख पा रहे हैं, वो है 90%, एंड दैट इज कॉल्ड एज एटीट्यूड. ओके, आइसबर्ग में भी 90% हिस्सा, इफ आई शो यू द नेक्स्ट पिक्चर, देखिए 90% हिस्सा सी लेवल के नीचे है, जो शायद हमें नहीं दिख पाता. वैसे ही हमारी पर्सनालिटी के साथ होता है. जो हिस्सा लोग देख पा रहे हैं हमारी नॉलेज, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम कितने हाजिर जवाब हैं, कौन कौन सी स्किल्स हमें आती है. बट 90% हिस्सा जो हमारे दिमाग में है, सी लेवल के नीचे, यानी हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में है, वो 90% हिस्सा है जो दूसरे नहीं देख पाते, एंड दैट इज कॉल्ड एज एटीट्यूड. ओके, एटीट्यूड एक दिन में नहीं बनता. जैसे मैंने पहले भी बोला, जिस दिन से आप बॉर्न हुए हैं, यू स्टार्ट डेवलपिंग, यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स एंड डेवलपिंग एटीट्यूड. ओके, फैमिली सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा क्या बोलेंगे कंपोनेंट है, जहां से हम एटीट्यूड, फर्स्ट स्कूल जिसको बोलते हैं, जहां से हम एटीट्यूड डेवलप करना चालू करते हैं. Okay, so likewise, our personality is also like an iceberg. 10% हिस्सा ही अगला देख पाता है, अगला यानी जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं. बट 90% हिस्सा जो हमारे दिमाग के अंदर है, वो लोग नहीं देख पाते, और सारा गेम उस 90% का ही है. ओके, आप यदि उस 90% ऑफ एटीट्यूड जो आपके दिमाग में है उसको पॉजिटिव रखेंगे, तो आपका बिहेवियर भी लोगों के साथ पॉजिटिव हो जाएगा. Fine, but I know it's difficult to practice actually, क्योंकि हम situation के साथ बह जाते हैं. Okay, but then if you have control on this 90%, half of the game is solved, right? And that will add, 4 चांद लगा देगा आपकी पर्सनालिटी में, यदि आपका ये 90% आपने टेक केयर कर लिया तो. Fine, so this is basically called as an iceberg theory. Any doubt here? Okay, we'll move further. Okay, now why do we have negative attitude? क्यों आती है negative attitude? We had a negative attitude towards this donkey also in the previous picture. कहाँ से आता है negative attitude? Okay, the first one is the environment, and second one is our past experiences. हमारी environment में सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, हमारा सबसे पहला स्कूल रहता है हमारी फैमिली, हमारा घर. ठीक है, environment में सबसे पहले है home. यदि आपका घर में प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, लाइक if you are constantly being compared with your siblings, or there are a lot of financial issues, a lot of parents conflict, okay, तो तभी भी नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि शुरू से आपने स्ट्रगल देखा है. ओके, फैमिली एनवायरनमेंट में. सो देन जैसे कंपैरिजन हुआ सिबलिंग्स के बीच में, वो अच्छा पढ़ता है, तुम अच्छा नहीं पढ़ते. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट यू हैव नेगेटिव एटीट्यूड. देन सेकेंड वन इज स्कूल एंड कॉलेज. ओके, एक बार घर से निकलते हैं तो स्कूल कॉलेज की तरफ हम जब अपने जीवन का दूसरा पड़ाव, मेजर टाइम हम स्कूल कॉलेज में ही व्यतीत करते हैं, तो वहां पर भी यदि टीचर बायस है, या
आपको अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स में ही इन अनहेल्दी कंपटीशन है, दैट विल आल्सो लीड टू डेवलपिंग नेगेटिव एटीट्यूड इन लाइफ। ओके, बट यहाँ पर होम में हमारे पास चॉइस नहीं है किसे सिलेक्ट करना है किसे नहीं। ओके, पेरेंट्स के लिए चॉइस नहीं होती, वो गॉड भगवान ने दिए हैं हमें, बट डेफिनेटली व्हेन यू कम इन स्कूल एंड कॉलेज यू हैव अ चॉइस किनके साथ रहना है किनके साथ नहीं रहना है। जैसे अभी मानसी ने बोला, हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वी कैन गेट गुड, लर्न गुड फ्रॉम एवरी पर्सन इन लाइफ। ओके, तो यहाँ पर भी आपके ऊपर है कि आप कैसे लोगों के साथ अपनी कंपनी, बेसिकली देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, आर नेटवर्क्स, किनके साथ है हम, हमारी कंपनी कैसी है। एक प्रोवर्ब सुना होगा इंग्लिश में, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। ओके, आप किनके साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, क्योंकि वो जैसे होंगे उनका थोड़ा थोड़ा पर्सनालिटी ट्रेट्स आप पर भी आने लगता है। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस, किसे सिलेक्ट करना है, किससे कितना सीखना है, राइट। देन द थर्ड इज हियर इज वर्क प्लेस। वर्क प्लेस है ना, जब आप उम्र के और आगे पड़ाव में जाते हैं, जब आप जॉब करने लगते हैं, दैट बिकम्स योर वर्क प्लेस। ना वर्क प्लेस में भी बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। ओके, बहुत कंपटीशन है अभी बाहर मार्केट में, इवन इन द वर्क प्लेस, यदि अनहेल्दी कंपटीशन है वो। ओके, यदि if the boss is not cooperative, the peers are not cooperative, and आपके colleagues cooperative नहीं है, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, again that will lead to negativity. ओके, जैसे मैंने पहले भी बोला, यू कैन नॉट इग्नोर योर बॉस, बट डेफिनेटली यू कैन लर्न गुड फ्रॉम एवरीवन। देन अभी जो है टीवी एंड सोशल मीडिया, अभी पेंडेमिक के समय तो कितना ज्यादा नेगेटिविटी थ्रू द मीडिया एंड टीवी, दे आर ऑल शोइंग कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितना थिंग्स लाइक दैट। अभी काफी मैसेजेस ऐसे भी आए थे व्हाट्सएप पे कि स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन, बिकॉज ये इससे पॉजिटिविटी कुछ नहीं आ रही है और हम डर रहे हैं। ओके, इट इज क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ फियर इन आवरसेल्फ। So again, this TV and other, no doubt, these are also important for us to make us aware of the surrounding, क्या हो रहा है हमारे surrounding में। But then it all depends upon us कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना। न्यूज देखना बंद कर दीजिए, ऐसा बीच में आया था, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गया था ये न्यूज चैनल्स के कारण। देन द फिफ्थ पॉइंट हियर इज कल्चर एंड ट्रेडिशन। हर कंट्री का एक कल्चर होता है। इफ आई टॉक अबाउट जापानीज कल्चर, जापानीज कल्चर मतलब कैसा होता है, मतलब व्हाट यू थिंक व्हेन यू थिंक ऑफ जापानीज पीपल? पोलाइट। वेरी पोलाइट। ओके, ओके, और क्या ट्रेट्स आपके दिमाग में आते हैं? यस मैम, दे आर वर्कोहॉलिक। वेरी वर्कोहॉलिक, वेरी परफेक्शन, perfection. Yes, And patriotic. very patriotic. Okay, so these are some of the things that we perceive when we have, like, this is the culture of Japan. Okay, they are very perfectionist, they are very workaholic and hardworking. So culture of the country जो है वो भी individuals में, citizens में percolate होता है कहीं ना कहीं। Okay, so again culture and tradition, likewise हर religion, हर culture कुछ अलग बताती है। Fine, this is the culture of the country that I talked about. American culture कुछ और बोलता है, they are very very punctual, like the American culture, it says like this. So the culture of the country also plays an important role in what type of attitude we are imbibing in ourselves. And third, last one under this is our networks, हमारी फ्रेंड्स, जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। नेटवर्क्स यानी जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, टाइम बिताते हैं, जिनको हम जानते हैं, पहचान है जिनसे। ओके, तो वो भी यदि नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं तो ऑटोमेटिकली हम में भी वो नेगेटिविटी पर्कुलेट होती है। और इसमें सेकंड पॉइंट है पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कि पास्ट एक्सपीरियंस में यदि आपको कभी डॉग बाइट किया है, ठीक है, से जब आप छोटे थे तो कुत्ते ने काट लिया, राइट, तो अभी आप जितनी बार भी वो, मतलब एक डर लग जाता है ना उसके बाद कि नहीं बाबा, अब एक बार एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है, अभी नहीं
डॉग से दूर रहना है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं, मतलब दैट यू हैव अ मेंटल इमेज एक पास्ट एक्सपीरियंस के कारण। लाइकवाइज जैसे जिनका कोई बहुत ही डेंजरस ये एक्सीडेंट हुआ है, वो शायद बहुत ही प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग नहीं कर पाते, क्योंकि एक डर रह जाता है, मतलब कर पाते हैं बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम उस डर से उभरने में कि नहीं ऐसा हो गया था। whenever you sit in the driving seat, वो चीजें वो सब अपने आप याद आने लगती हैं। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज पास्ट एक्सपीरियंसेस। इसके कारण भी नेगेटिविटी काफी आती है। देन आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, बिलीव्स क्या है, परसेप्शन क्या है लोगों को लेकर, परसेप्शन यानी धारणा। ओके आप क्या सोचते हैं सिचुएशंस के बारे में। जैसे कि अभी एक सिंपल धारणा बताती हूँ, जो स्टीरियोटाइप जिसको बोल सकते हैं कि विमेन कैन नॉट ड्राइव प्रॉपर्ली। एक धारणा है जो बहुत फेमस है, हालांकि अभी इवन आई ड्राइव, like many women have started driving, but ये धारणा क्यों है हमारे दिमाग में? Why we perceive like that, even though all are not bad drivers? ये परसेप्शन कहाँ से आई? हाँ मैम पेट्रियार्की। ओके क्योंकि हमने सुनते आया है सोसाइटी। ओके स्टीरियोटाइप कर दिया है हमने, नहीं चला पाएंगे वो, उनसे नहीं हो पाएगा। हैवी कोई काम है जैसे वेट लिफ्टिंग एंड ऑल, नहीं है, लेडीज का काम नहीं। सो दिस इज ऑल स्टीरियोटाइप्स जो है, जो हमारी सोसाइटी ने, जो हमारे पेरेंट्स ने हम पर इम्बाइब कर दिया, जिसके कारण भी नेगेटिव एटीट्यूड आता है। And the last one is conditioning. Conditioning basically means it is a process of training your mind to accept certain things. Okay? हमने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर दिया, जैसे मैंने अभी बोला एक्सीडेंट हुआ तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेन हो गया, ना बाबा ड्राइविंग मेरे बस का नहीं है। दिस इज हाउ आई हैव ट्रेन्ड माय माइंड कि नहीं अब डॉगीज के पास नहीं जाना, क्योंकि वो काटते हैं और बहुत बुरा काट लेते हैं। Okay, so this conditioning, this negative conditioning also leads to developing negative attitude, right? Now, any points here that is not clear and you have any queries? Shall we move further? Running short of time. Yes, ma'am. Okay, so let us ask one question to ourselves. Are someone positive or is there a choice I have? What do you think? Is there a choice I have कि लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं वो जन्म से पॉजिटिव होते हैं, कि ये मेरे ऊपर चॉइस है कि मुझे पॉजिटिव रहना है कि नहीं? It's a matter of choice, ma'am. Yes, it's basically a matter of choice. आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, पॉजिटिविटी की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ, it all depends upon you. मैं कितना भी आज लेक्चर ले लूं यहाँ पर, but again ये लेक्चर तभी सक्सेसफुल होगा if you start implementing whatever I'm teaching you. It is a matter of choice, right? Okay, ये देखिए इतनी atrocities है लाइफ में तो भी he is learning, he is positive, doesn't have legs, the half of the body is missing. Still there is an urge, there is a willingness to walk, to learn new things. नहीं, उसके पास तो आधी बॉडी नहीं, हमारे पास तो सब है, तो हम क्यों नहीं वैसे हो सकते? हम क्यों नहीं, why we cannot be open towards learning new things, towards always talking positive, okay, and overcoming our problems in life. Okay, problems बहुत है उसकी लाइफ में, दिख रहा है ना? Is the pic clear? Yes, ma'am. Yes, problems बहुत है, आधी बॉडी ही नहीं है, but look, he has a willingness to learn. Likewise, we should also have the willingness. हमारे पास तो सब कुछ है, still willingness is missing to learn new things. That is all depends upon us. So yes, it is the time to change. Basically, change. There is a need to change. Yeah, and the change is the way we think, feel, and behave. You have to change yourself, because with negative attitude, it will hamper your mental ability. यदि हम हर बार सिर्फ negative सोचते रहेंगे तो yes, there is a time to change. Okay, so let's start by pressing the pause button. Pause button है हम सब में, हम उसका use बहुत कम करते हैं क्योंकि we are always in a haste to take action. क्या करेंगे? pause button दबाएंगे, पहले we will stop,
then we will think, and then we will act. Okay? हम क्या सोचते, बिना सोचे समझे हम एक्ट करना चालू कर देते हैं. But make use of the pause button. You stop, you think what I'm doing, how I'm reacting, what repercussion it will have on others. Think, is it right or it is wrong, and then start acting. Yes, so make use of the pause button in life. Okay, press the pause button, stop, think and act, but you always have the freedom to choose. हर कोई ये नहीं कर सकता. You have the freedom to choose कहाँ pause button लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए. It is all up to you, right? Okay, then press the pause and choose your thoughts, feelings and behavior. Basically, हम जब भी कोई stimulus देखते हैं तो we start reacting to that. But stimulus यदि आता है तो press the pause button. You have a choice to pressing the pause button, and then you can respond. What is stimulus? What is the meaning of stimulus? Outside influence. Pardon me? Outside influence, it can be object, it can be people. Yes, yes. Any outside influence. It can be an object, it can be a situation, it can be an event. कोई भी जब हम पर आता है तो we immediately start reacting without thinking. But अभी हमें बदलना है खुद को. We need to change ourselves. जब भी कोई situation, कोई object, कोई person, यदि हम उनसे interact कर रहे हैं, press the pause button inside you. Think and response. Okay? Any doubt by far? Anybody? What is the difference in between react and responding? React means spontaneously. एकदम से आपने बिना सोचे समझे you react. जब हम यदि थोड़ा सा भी नाइफ से कट जाता है तो we immediately react, है ना? That is reaction. Okay? तो stimulus बोलता है कि सोचो, सोच कर एक्ट करना is response. बिना सोचे रिएक्ट करना is reaction. Right? You should respond to the stimulus, not react to the stimulus. Clear? Thank Clear? you. Yes. Right. Okay. Yes. Benefits of practicing positive attitude. There are n number of benefits. Okay. हमेशा यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रहते हैं, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, व्हाटएवर, इट विल एनहांस योर प्रोडक्टिविटी, रादर इट विल इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी. देन यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे हैं, आपको हर कोई अपने टीम में लेना चाहेगा. ओके, इफ यू हैव नहीं यार हो जाएगा यार, कर लेते हैं यार, एक अटेम्प्ट तो बनता है, ऐसे यदि आपका एटीट्यूड है तो एवरीबडी would like to keep you in their teams. Okay, so we basically it enhances the teamwork. Positive attitude is basically problem solving के लिए बहुत जरूरी है. नेगेटिव एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम दिखाता है, देख ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो बंदा रहता है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता है. ओके, इट इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स आल्सो. यस, then it reduces stress. One of the most important thing is that stress बहुत बढ़ता जा रहा है लाइफ में. पॉजिटिव एटीट्यूड रखो. मैं ये भी नहीं बोल रही कि हाँ देख लेंगे वाला एटीट्यूड, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला एटीट्यूड भी नहीं, बट हाँ कर लेंगे, ये मेरे से हो जाएगा. आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब when you have that attitude. हाँ, डरना नहीं है, हो जाएगा मेरे से. स्ट्रेस आधा वहीं कम हो जाता है. देख लेंगे ना. अभी आजकल का जो यूथ है वो बिल्कुल 11th आवर में जब चीजें आ जाती हैं, असाइनमेंट सबमिशन का डेट आ जा रहा है, तब दे स्टार्ट राइटिंग. होता है, हर के साथ होता है. हम भी जब स्टूडेंट थे तो किया है हमने भी, है ना, क्योंकि हमने बाकी समय क्या किया, मजे. और अभी जब एकदम डेडलाइन आई है, देन वी स्टार्ट राइटिंग एंड देन वी स्टार्ट रिएक्टिंग. वी डोंट रिस्पॉन्ड, वी रिएक्ट इन दैट केस, और उससे और स्ट्रेस बढ़ता है. Right? Then definitely if you practice positive attitude, it will enhance your personality and it will lead to personal growth. Right? Now, how to make these choices? इतने सारे advantages हैं positive attitude में, but ये कैसे मिलेंगे? How to change thoughts, feelings and behavior? Let us see. Now, these are the 7-step approaches. There are 7 steps which I will be telling you as to how to practice or how to have a positive attitude in life.
The first one is make a decision today to change. आज ही डिसाइड करना है कि आज से मुझे बदलना है, ठीक है. इट्स बेटर लेट देन नेवर. थोड़ा लेट हो गए हम लाइफ में, ओके. आई थिंक अभी सभी स्टूडेंट्स की एज 18-19 होगी, ओके. तो इट्स बेटर लेट देन नेवर, ओके. देखिए यहाँ पिक्चर में एटीट्यूड दिमाग में है, बिहेवियर कहाँ आता है, हमारे एक्शन में आता है. कैन यू सी द पिक्चर? एटीट्यूड दिमाग में है, एटीट्यूड बोलता है ऐसा रिएक्ट कर, ऐसा बिहेव कर, एंड इमीडिएटली वी स्टार्ट बिहेविंग इन दैट वे. सो यदि एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा. सो यस, मेक अ डिसीजन टुडे टू चेंज. स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप टुडे. Decide today with which person, people, situation, circumstances and task you have to change your attitude. आपको लिस्ट बनानी है किन के साथ मैं पॉजिटिव रहूंगी, किन सिचुएशंस में मैं पॉजिटिव रहूंगी, किन सर्कमस्टेंसेस में पॉजिटिव रहूंगी और किन टास्क के साथ पॉजिटिव रहूंगी. ओके, दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू. So you have to make a list of persons, people, situations, circumstances, and tasks you will change your attitude with. Then second is shift your focus. It is very important that we shift our focus on what's right versus what is wrong. आप हर चीज में यदि गलत देखोगे, you cannot have a positive attitude. Start looking good on things. यदि एक चीज में, एक ऑब्जेक्ट में 2 नेगेटिव चीजें हैं तो 4 पॉजिटिव भी होंगी. राइट की तरफ देखिए, रॉन्ग की तरफ नहीं. ओके, फोकस ऑन what you have rather than what you don't. We are very blessed that we have a wonderful life. Okay, जो है basically what we start comparing ourselves with others. उसका तो इतना अच्छा दिमाग है, वो तो कितना अच्छी इसकी हैंड राइटिंग है, ओके. उनके पास तो they have such a good bungalow, they have such a good bank balance. Don't compare yourself with others. That is the first mistake that we do, है ना. उनके पास ऐसा है, उनके पास वैसा, वो उनको रहने दो. आप अपने आप को देखो, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे अच्छा कर सकते हो, कि आपके पास क्या अच्छा है जिसे और एनहांस कर सकते हैं. ओके, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उससे, जैसे अब वो कितना सुंदर है, मैं नहीं हूं, ये आपके हाथ में नहीं है. ओके, but then definitely if you're not that good looking, but you can enhance your personality in that way. अकेले सुंदरता is not important. अकेले money या bank balance या money is not important. There are other things also which can be enhanced, which can be you can enhance your knowledge, you can enhance your skills. Okay, so again, focus on what do you have rather than what you don't. Focus on solutions than on problems. Problems निकालना बहुत आसान है. इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. It's very easy. But प्रॉब्लम्स निकाले हैं तो उसका सोल्यूशन भी निकालना आना चाहिए, राइट. हमेशा आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देखेंगे, इट वोंट वर्क इन लाइफ. प्रॉब्लम्स आपके ही है तो सोल्यूशन भी आपने ही निकालना पड़ेगा. ओके, देन बी मोर क्यूरियस instead of judgmental. It says instead of blaming and complaining, be curious to ask yourself a question. Why is this person or situation like that? ओके, दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि ये ऐसा क्यों है, मैं इसकी जगह होती तो क्या ऐसी होती क्या. What can I change here in this situation or with this person? Can I be helpful to this person to change? Okay, ब्लेम कंप्लेन होता है ना बहुत बार कि हम वर्क प्लेस में या फिर आपका कोई कॉलेज में क्लासमेट है जो थोड़ा सा शैतान है, एंड वी स्टार्ट कंप्लेनिंग टू द टीचर, मैडम मुझे इसके साथ नहीं रहना, ही ऑलवेज बुलीज मी एंड थिंग्स लाइक दैट. अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्यों वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, कैन आई हेल्प हिम टू चेंज. यदि हम दूसरों को बदल सकते हैं, थोड़ी भी क्षमता रखते हैं दूसरों को बदलने की, तो अपने आप को भी बदल सकते हैं. हेल्प अदर्स टू इम्प्रूव, हेल्प योरसेल्फ टू इम्प्रूव. ओके, देन वी हैव step 4, develop an attitude of gratitude. What is gratitude? Yes, being gratitude. thankful. Being thankful. Oblige करना.
ओके जितना हमारे पास है उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद करते हैं, कम से कम इतना तो है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। ओके it basically says कि I was crying for a pair of shoes until I saw a man without legs. I thank God at least I have legs. है ना, इतनी अच्छी लाइफ दी है भगवान ने हमें। वी हैव एवरीथिंग, वी हैव गुड पेरेंट्स, our physique is good, we have 2 hands 2 eyes, everything we have। हम उसमें ही मीन मेक निकाल रहे हैं। लेट्स थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज गिवन टू अस, blessing us with this beautiful life। Find something, appreciate in tough time, tough persons and tough situations now। Appreciate। tough times आता है या कोई tough person आता है, tough situation आती है तो हम एकदम लो फील करने लगते हैं, डर जाते हैं। बट उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है टफ सिचुएशंस एंड टफ टाइम्स से। अभी टफ टाइम आकर गया, अभी खत्म नहीं हुआ है। दिस पेंडेमिक इज नॉट येट ओवर। इट वाज अ टफ टाइम फॉर एवरीबॉडी। बट उस टफ टाइम में अभी भी कुछ लोगों का एटीट्यूड है, ये मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, ये सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत नहीं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग। अब देखिए अभी मार्केट एवरीथिंग इज ओपन, पीपल आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेट मतलब आप यदि इतवारी तरफ जाएंगे तो यू कैन सी पीपल विदाउट मास्क। This is basically what type of attitude you have. If you're not bothered about yourself, bother about your family and for others. Okay? Whenever you feel down, depressed, frustrated, see what can be acknowledged. Okay? क्या अच्छा हो सकता है? Whenever you are in depression, frustration, अच्छी चीजें निकालने की कोशिश करो अपने आप से। डाइवर्ट योरसेल्फ टुवर्ड्स समथिंग यू नो व्हिच आप जैसे एवरीबॉडी हैज एन हॉबी होता, आपकी एज में तो होता ही है। सम मे लाइक टू लाइक रीड नॉवेल्स और लिसन टू गुड सॉन्ग्स। जब भी आपको लगता है आप पे डिप्रेशन आ रहा है या फिर या फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री, सो छत पे जाओ और चिल्ला दो, अपने जोर से चिल्ला दो, रादर देन चिल्लाना किसी और पर और आप कुछ भी शब्द निकल जाएंगे उस समय। बढ़िया टेरेस में जाओ एंड शाउट। बच्चे कैसे चिल्लाते हैं अपना एंगर के छुपाने के लिए, छोटे बच्चे जो रहते हैं, टॉडलर्स जो रहते हैं, चिल्लाते हैं ना वो। आप उनको थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो चिल्लाते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. यस। वैसे ही हम उतने छोटे तो नहीं है किसी के सामने भी चिल्ला देंगे, बट व्हेनेवर यू आर थिंक यू आर फ्रस्ट्रेटेड, ओके आइदर डाइवर्ट योर माइंड टुवर्ड्स योर हॉबी। और बहुत ज्यादा लग रहा है किसी को कुछ बोल दूं तो मेरी भड़ास निकल जाए, होता है बहुत बार। भड़ास तो निकालना है अभी, तो किसी पे तो भी निकालना है। वो भड़ास किसी पे मत निकालिए, अपने टेरेस पे जाइए, बढ़िया जोर से चिल्ला दीजिए। दैट इज एन इजी वे आउट। ओके बच्चे बन जाइए। बच्चों का एटीट्यूड मतलब जो टॉडलर्स रहते हैं ना, उन सबसे बेस्ट एटीट्यूड है उनका। दे डोंट जज पीपल, दे टेक लाइफ एज इट कम्स। हमारे में जैसा ही दिमाग आने लगता है वी स्टार्ट जजिंग, दैट इज द वर्स्ट थिंग। क्योंकि ज्यादा दिमाग से हम लगाते हैं और वो बंदे को जज करने लगते हैं। ओके देन वी हैव डिसाइड नॉट टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। यस दिस वाज बेसिकली वन कैन नॉट बी परफेक्ट ऑल द टाइम। हम परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते, ना ही हम खुद को सबको खुश रख सकते हैं। नो इट्स इम्पॉसिबल टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी। Okay, stop having high expectations from yourself and others। उतना ही एक्सपेक्ट करिए जितना वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो खुद को ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। ओके व्हेन एक्सपेक्टेशंस डू नॉट मैच, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ नेगेटिव्स, है ना। सो अपने आप से एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखिए जितनी आप उसे फुलफिल कर सकते। अब ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में सिर्फ मैं 50% लाऊंगा, ओके या क्योंकि मैंने 70 बोल दिया तो वो 70 आएंगे नहीं एंड आई विल स्टार्ट हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड। ऐसा नहीं बोल रही हूँ। यू नो योर कैलिबर, यू नो योर नॉलेज एंड स्किल। सेट अ बेंचमार्क फॉर योरसेल्फ व्हिच इज इजी टू अटेन, व्हिच यू थिंक यू कैन अटेन। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना अपने से रखिए ना दूसरों से रखिए, बट ड्रीम बिग। ड्रीम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन मत करिए कि मैं मतलब इतने इससे ज्यादा कर लूंगा या थिंग्स लाइक दैट। सपने देखना जरूरी है, सपने नहीं देखेंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे, बट जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करना इज बेसिकली द स्टार्टिंग ऑफ नेगेटिव थॉट्स।
Yes, and the next is believe in yourself. बहुत इंपॉर्टेंट है that you believe in yourself. दुनिया जो भी सोचे आपके बारे में, you have to always think positive about yourself. This is not an inflated ego. Ego रखना is a little problem. Ego नहीं होना चाहिए. But when you think and feel good about yourself, then you are able to see the same in others. आप पॉजिटिव हैं तो आपको अगला भी पॉजिटिव दिखेगा. Okay? Whatever you believe, you achieve. आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होता है. I have a short video on that I'll be showing you. Okay, take action now. You can't just stand before the mirror and shout positive attitude. You have to take action. ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोच लिया आंख बंद करके, okay, मैडम ने लेक्चर दिया है, I will be positive from now. No, नहीं हो सकता. You have to take actions to be positive. Stop procrastinating and start now. कल से देखेंगे ना क्या कर सकते हैं, टालना वाला काम नहीं होना चाहिए. राइट डाउन फॉर द नेक्स्ट 7 days द एक्शन प्लान. कैसे मैं पॉजिटिव हो सकती हूँ, किन के लोगों के लिए मुझे मेरा रवैया बदलना चाहिए, कौन मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में. ओके, यू हैव टू राइट डाउन द एक्शन प्लान. सिर्फ बोलने से, सोचने से पॉजिटिव इसमें बोलना नहीं है कुछ. ठीक है, चलेगा. और क्या You have certain questions? Somebody wants to ask something. Shall I continue? Yes, ma'am. Okay. Okay. With a bad attitude, you can never have a positive day. With a positive attitude, you can never have a bad day. Yes, positive attitude है तो आपकी लाइफ में कभी बुरे दिन आएंगे ही नहीं. आएंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ. एट्रोसिटीज हर की लाइफ में आती है, बट आपको पता है उसका सामना कैसे करना है. राइट नाउ आई विल, there's a small video, please look at. Did you saw the video, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Was ma'am. it visible, clear? Yes, ma'am. Yes. So what do you learn from the two students, Ali and Sarah? And the power of believing. Yes. Anybody else? Okay, the power of believe in yourself. Yes. Anybody else? What do you learn from the two students? बिलीव करना और फिर अकॉर्डिंगली एक्शन भी लेना, क्योंकि अगर सिर्फ सोचते रह जाते कि हाँ मैं कर सकती हूँ और अगर उस पर एक्शन नहीं होता तो भी रिजल्ट निगेटिव ही होता. एंड पहले से ही हार मानने से अगर हमें पता है कि हाँ ठीक है मैं तो फेल होने वाला हूँ, लेकिन एक्शन लेके देखते हैं, पैसे भी तो मैं नहीं करूंगा तो फेल हो ही जाऊंगा, लेकिन एक्शन लेके देख सकते हैं कि कुछ चेंज हो सकता है इसमें. सो एक्शंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट. Very good. The actions are always important. And हम जैसा सोचते हैं ना, सोच लिया मेरे से नहीं होगा, एक बार आपने मेंटल ब्लॉक बना लिया ना कि ये सब मेरे से नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली नहीं होगा. आप वो मेंटल ब्लॉक हटा दीजिए कि ये मेरे बस का नहीं है. हमारे पास हर के पास इक्वल बुद्धि दी है भगवान ने. वो अलग बात है कि हम उसका यूज नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है सम पीपल आर बॉर्न इंटेलिजेंट. ओके, मैं आइंस्टाइन और इन सब की बात नहीं कर रही हूँ, हम एवरेज लोगों की बात करेंगे. सबकी बुद्धि एक जैसी है. ओके, बट ये हमारे ऊपर है कि हमें उसका कितना यूज करके आगे बढ़ना है. राइट? ओके, सो सेल्फ टेस्ट करते हैं. डू यू फियर टू फेल और मेक मिस्टेक्स? डू यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर? डू यू डाउट योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज? Do you see yourself being pushed around, bullied, or inferior than others? Do you feel bad, guilty, nervous, and angry? Do you say, I am like that only? Do you say,
डू यू नो योर सेल्फ वर्थ? इन सब का आंसर हमें मतलब या तो यस है, मैक्सिमम लोगों के लिए यस है, यस आई फियर टू मेक फेल टू मेक मिस्टेक, आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर अ सेपरेट आइडेंटिटी। लाइक इस यदि सेल्फ टेस्ट में आप फेल होते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम क्या करते हैं, सी द पिक्चर, या एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, आप जैसे हो अच्छे हो। ओके अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में सोचो, रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। कंपेयर मत करो, अपना जैसे भगवान ने हमें बनाया है उनका शुक्रिया करिए, हमें इंसान का जन्म दिया, हमें इतनी अच्छी बुद्धि दी है। ओके एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर एंड डोंट बी हेजिटेंट टू लर्न न्यू थिंग्स। फेल भी होंगे तो क्या एक्सपीरियंस तो आएगा ना। डोंट बी हेजिटेंट, ये मेरे बस का नहीं है, एंकरिंग मेरे बस की नहीं है, स्टेज परफॉर्मेंस मेरे बस का नहीं है। हाँ मैं ये बोल सकती हूँ सिंगिंग मेरे बस की नहीं है, डांसिंग मेरे बस की नहीं है, बट एंकरिंग मेरे बस की क्यों नहीं है ना। फेल होंगे पर सीखेंगे तो ना। ओके सो एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। ऐसे तो ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है एंकरिंग के, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसमें हम बोलते हैं कि ये मेरे लिए बना ही नहीं, या मैं इस चीज के लिए बनी ही नहीं हूँ। दिस इज रॉन्ग, गिव इट अ ट्राई। हमने शायद कभी वो चीज को एक्सप्लोर किया ही नहीं। Then self belief, remember your childhood, you never gave up to stand and walk. खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। अभी जो मैंने वीडियो दिखाया सारा एंड अली का, सेल्फ बिलीव, जो सारा कैसे पास हुई, बिकॉज शी वाज बिलीविंग इन हरसेल्फ दैट शी विल डेफिनेटली पास। लाइकवाइज वो सेल्फ बिलीव हमने भी होना चाहिए, राइट। देन सेल्फ इमेज, दैट इज दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट सेल्फ परसेप्शन। खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं। ये देखिए यहाँ एक कैट है जो मिरर में अपने आप को लायन देख रही है। ओके सो व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हाउ यू सी योरसेल्फ। दुनिया देख रही है, दुनिया बोलती है आप कुछ नहीं कर पाओगे, दैट डजंट मैटर। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। सेल्फ इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेल्फ एस्टीम, हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। ओके आपको लगता है आपको कुछ सीखना है, गो अहेड। कोई सर्टिफिकेशन करना है, कोई कोर्स आगे करना है, गो अहेड, फील गुड अबाउट योरसेल्फ। मैं क्यों आ गई दुनिया में, मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसे सारे थॉट्स कभी लाइफ में नहीं लाना। दैट इज अ वेरी बैड थिंग दैट वन कैन डू, कि मैं क्यों आ गई दुनिया में। नो, आप आए हो किसी पर्पस के लिए आए हैं अपन सब, और उस पर्पस को फुलफिल करना ही हमारा काम है। तो ऑलवेज फील गुड अबाउट योरसेल्फ। सेल्फ टॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से बात कितने लोग करते हैं, खुद से बातें मैम कभी कभी। कभी कभी करते हैं। उसमें आप अपने आप से मतलब अपने लिए बैड वर्ड्स रखते हैं कि गुड वर्ड्स रखते हैं। Ma'am, हम sometimes both. when I do wrong, I say you shouldn't have done that. ओके And when I do good, I say that's a good thing. या समटाइम्स अपने आप को शाबाशी देना भी जरूरी है। कुछ अच्छा किया तो वाह क्या किया है मैंने, लेट्स सेलिब्रेट, है ना। When बट we Ma'am, यस as talk per with me, I ourselves, first यस think about the negative one and then how to solve it and make the change in positive way. So I mostly focus on my negative, not okay, that is very good. That is very good that you previously used to, somebody helped you in doing that or that was your choice. I myself. That is very very good. नेगेटिव करने चीजों से, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग वोंट हेल्प यू। आप अपने आप से जब भी बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं कह रही हूँ कि अपने आप से राजा महाराजाओं की जैसे बात करें, हम ये करेंगे हमारी प्रजा, ऐसा नहीं। बट देन जो गलत है उसे एक्सेप्ट करो, मेरे अंदर ये फॉल्ट है। सपोज से फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती मुझे, या मुझे मेरे अंदर अवेयरनेस नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आई नो दैट इज माई वीक पॉइंट। अपना एक्सेप्ट करो बट देन टेक एक्शंस आल्सो टू इम्प्रूव इट। आप सिर्फ सोचते रहोगे मुझे ये नहीं आता मुझे, या फिर स्पेशली जब बचपन में मैथ स्टफ लगता है था, ओके मैथ स्टफ लगता है सोचते रहेंगे, नहीं सीखेंगे तो मैथ्स इजी भी लगने लगेगा।
तो सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी जो वीकनेसेस है उसे एक्सेप्ट करना, अपने आप को शाबाशी देना, और अपना मतलब कैसे उस चीज को ठीक करना है जो हमारी वीकनेसेस हैं, दैट विल हेल्प यू थ्रू सेल्फ टॉक ओनली. और सेल्फ टॉक में भी मेक श्योर दैट यू डोंट टॉक योरसेल्फ इन नेगेटिव वर्ड्स. मुझसे ये नहीं होने वाला, ये मैंने क्यों चूज कर लिया स्पेशलाइजेशन, ये मेरे बस का नहीं है. नहीं, डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ. ओके, सेल्फ एनालिसिस, अपने आप का एनालिसिस करो. मेरे अंदर क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मैं अपनी वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या, मैं वीकनेसेस को पॉजिटिव की तरफ ला सकती हूँ क्या, उनको अपनी स्ट्रेंथ बना सकती हूँ क्या. वर्क ऑन दैट, that will help you in enhancing your personality. Then change now. Just as we change TV channels, it's time that you have to switch the channel of life and change it to self-confidence today. Okay, action plan. Say yes. मैं ये नहीं बोल रही हूँ हर चीज के लिए yes बोलना. That is also problematic. But अपने लाइफ की जो आपने प्रायोरिटी सेट करी है उसके लिए हमेशा खुद के लिए यस बोलना. दूसरों को हर बार में यस नहीं बोलना है, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे. ओके, लुक इनटू द मिरर एंड से आई लव यू टू योरसेल्फ. थैंक गॉड फॉर द लाइफ दैट ही हैज गिवन टू यू. है ना? लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर. स्टार्ट योर डे विद अ स्माइल एंड ग्रेटिट्यूड. हमेशा फ्राउन करना, टेंशन में रहना won't help you. Give a pat on your back when you have done something good. खुद को शाबाशी दो. Think, feel and talk positive. Count your blessings. जो हमारे पास हैं उन्हें काउंट करिए, जो नहीं है उनकी तरफ ज्यादा मत सोचिए. Spend time with self-confident people. जिनका जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, कॉन्फिडेंट लोग हैं, उनसे सीखिए, लर्न करिए. And make mistakes and but make sure you correct them the next time. Okay, so these are the few things by which you can have positive attitude. Okay, it says it is not important to get it right, but it is very important to get it going. एक बार गलती होती है, सुधारिए, बट गलतियां करते रहिए. डोंट स्टॉप. डरो मत, मैं गलती कर दूंगी तो बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा. गलतियां करिए, but make sure you don't repeat the same mistakes every time. Okay, I think I'm done now. That's it. Thank you very much for listening. Now it's, if you have any queries, you can Yes, ask ma'am. me. Yeah, please go ahead. Yes, ma'am. Like at one point you say कि हम लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि this I cannot do or something like that. हाँ, But sometimes it is important to eliminate the things from our life. Like जैसे कि personally I'm not good at sports. Okay, so but I am good at studies. So अगर हाँ, तो अगर मैं स्पोर्ट्स में ही टाइम अपना दे रही हूँ, instead it's okay to accept, yes, sports is not my cup of tea. Sometimes Okay. for enjoyment I can do this and right. वो जो मेरी पूरी एनर्जीज है, या तो अगर उसको मैं अपनी स्टडीज में यूज करूँ या फिर जो मेरी स्किल्स है अगर उसमें यूज करूँ, Yes. तो that can be beneficial for me. So Yes, that is your choice. आपको लगता है स्पोर्ट्स नहीं है तो थोड़ा बहुत मतलब एकदम से, मतलब if you're good in studies, make that your priority. ओके, स्पोर्ट्स में नहीं है बट ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ भी नहीं आता. डोंट बी लाइक दैट. आपको हर फील्ड का मतलब थोड़ा बहुत जो आपको इंटरेस्ट एक आध स्पोर्ट्स में that रहेगा. is the reason I said sometimes as an enjoyment because I love like अगर रनिंग करना पसंद है बट एकदम से मैं उसी में पूरा सारा टाइम देने से अच्छा as an enjoyment if I'm doing that and then if I'm focusing on studies because I am good in that. यस, So परफेक्टली sometimes फाइन. elimination is also important. हाँ, क्या आपके बस का है, क्या आपके बस का नहीं है. जो बस का है उस पे प्रॉस्पर करिए, जो आपसे हो सकता है. बट देन दूसरी भी चीजें हैं जो जिन पर हम शायद कभी एक्सप्लोर नहीं करते, ये सोचकर कि मुझसे नहीं बनेगा, है ना, हेजिटेंट हो जाते हैं. गिव अ ट्राई टू Yes, एवरीथिंग इन that लाइफ. is bad. Yes, yes. सारी यस, चीजें explore करना and then we can come to the conclusion if it's my cup of tea or it's not. So यस. then it's fine. But क्या instead of, yeah, agree. खुद से ही बना लेना माइंडसेट, ये मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होने वाला. नो, दैट इज, गिव अ ट्राई टू योरसेल्फ, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स.
हो सकता है शायद क्लिक हो जाए. Okay. Any more questions? Anyone? Ma'am, I have one. Yes, please, Sahil. Ma'am, as per you said, like we should not have ego. But Yeah. as per me, I have ego. But it's in a good way, so it's improve. Like it's मुझे like एग्जाम्पल दीजिए. हाँ, as साहिल. per me, I am egoistic. So it like filters my what we can say surrounding. So I'm not surrounded by the people I don't need in my life, or those who create nuisance or create like bad situation. So as per me, my ego is good. So it like makes my surrounding more clear. ईगो है अपने बारे में बहुत ज्यादा हाई सोचना कि मैं हूँ, मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता. दैट इज ईगो. ओके. तो मुझे नहीं लगता साहिल दैट इज मतलब यू टॉकिंग अबाउट दैट यू हैव ईगो. यू जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट यू डोंट हैव पीपल इन योर लाइफ who are actually of negative thoughts. Yes, ma'am. I Okay. don't talk with anyone, so it's like egoistic. No, you don't talk. You just ignore and like leave them just like that. या दैट इज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ही जज करना है हमें कौन चाहिए कौन नहीं. जैसे मैंने बोला फैमिली के लिए हमें चॉइसेस नहीं है. फैमिली हमको लिख कर आई है क्या फैमिली. बट फॉर पेरेंट्स, सॉरी फॉर फ्रेंड्स, है ना, किनसे बात करनी है, फॉर अ कंपनी वी हैव चॉइस कि हमें किससे बात करनी है. हम फिल्टर कर सकते हैं उनको. राइट. बट ईगो है कि अपने आप को बहुत महान समझना और बाकी तो सब ऐसे ही है मेरे सामने. दैट यू शुड नॉट हैव. है ना. अपने Okay, आप ma'am. को जरूरत से ज्यादा मतलब यू नो यू हैव हाई थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ. दैट इज एक्चुअली No, बैड. ma'am. I know my limitation, but I have a ego in a way that I don't talk with anyone. So that is not ego that you don't talk. That is No, you ma'am. basically It's like we don't talk. We just ignore. Like people always say me like he's egoistic. He won't talk ego to नहीं you. है. This You and that. you ये मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा इंट्रोवर्ट लग रहा है. आप लोगों से जल्दी खुल नहीं पाते क्या, मतलब No, एकदम से ma'am. बात नहीं कर खुल पाते. जाता हूँ पर मुझे बात ही नहीं करने देती. बातें ही नहीं करनी है लोगों से. No, I can mix up very well in a society or even in a working place. I even manage my like family office many times, so it's not a problem. But I don't want to talk to them. ओके. बट देन Yes, साइड ma'am. मुझे नहीं लगता वो जो प्रॉब्लम है. यू थिंक वेरी हाई फॉर योरसेल्फ कि मैं ये कर No, सकता हूँ, ma'am, मैं I वो know कर my सकता limitation and then I हूँ. can Yeah, like then that is not an issue overcome of how ego, I I think. can overcome that. Yeah, But yeah. people like in my college or in my class, they used to say like he is egoistic. He देखो, won't do this. He won't do that. लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. You know how you are. Yes, ma'am. बातें हर जगह होती हैं. लोगों का इतना गाना ही बन गया जो मैंने अभी गाया. ओके. Yes, सो ma'am. लेट पीपल स्पीक वट एवर दे वॉन्ट. यू नो योर सेल्फ वर्थ. यू नो आप में क्या अच्छी बात है. उनके कहने से आप वैसे तो नहीं हो जाओगे ना. और Yes, आप ma'am. सबको कंट्रोल भी नहीं कर सकते और उनके हिसाब से अपने आप को बदल भी नहीं सकते. तो लेट देम टॉक. Means like some part like ego is good for ourselves. यस, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ईगो अच्छा भी है, मतलब थोड़ा इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. ठीक है. अब मैं क्वांटिटी नहीं बता सकती, यहाँ मेजरेबल नहीं है वो. बट देन आप हमेशा अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं. यू हैव हाई थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ. ये तो चिल्लर है तो मैं कर लूंगी एंड थिंग्स लाइक दैट. दैट इज बैड. बट ईगो जरूरी है आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए. उतना ही ईगो रखो जितना आपको वो कॉन्फिडेंट बना सकता है. एंड Yes, लेट ma'am. पीपल टॉक. Yes, ma'am. सबके पास मुंह है. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमने मोदी को नहीं छोड़ा काम बात करने के लिए, तो साहिल और रश्मि कौन है नहीं. Yes, ma'am. ओके. यस, एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. Ma'am, यस पलाश. Hello, ma'am. या ma'am, यस. how can we use attitude while you just said that कि जब भी हमको डिप्रेशन आता है तो आपने बोला था कि क्या अच्छा हो सकता है करके. हाँ. तो मैम अगर यस. समझो कि डिप्रेशन का अगर थोड़ा एक मेजर थोड़ा ऊपर के मतलब थोड़ा सीरियस डिप्रेशन रहा तो मैं उस समय क्या कर सकता हूँ.
उस समय पलाश आपको अपना दिमाग डाइवर्ट करना है, जो नेगेटिव थॉट्स, जो रीजन है डिप्रेशन आने का, उसको छोड़कर, वो बात को छोड़कर, यू हैव टू डाइवर्ट योर माइंड, यू हैव टू डाइवर्ट योर फोकस टुवर्ड्स समथिंग व्हिच गिव्स यू प्लेजर. इट कैन बी से लिसनिंग टू म्यूजिक, इट कैन बी परसुइंग योर हॉबी, रीडिंग अ नॉवेल. ओके, तो आपको अपना फोकस हटाना है उस समय, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वजह है डिप्रेशन आने की. आप यदि वही वजह के अंदर रहोगे तो इट विल बी मोर डेंजरस फॉर यू. यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस देयर. टॉक टू पीपल, जिससे मम्मी से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, और टॉक टू योर फ्रेंड्स. यदि डिप्रेशन आपको लगता है कि मैं उसी के बारे में सोच सोच कर पागल हो गया हूं, तो मतलब यू हैव टू डाइवर्ट योर फोकस इन दैट केस पलाश. ओके मैम. यस, वो बहुत जरूरी, इसलिए बोलते ना, हमेशा यू शुड हैव वन हॉबी. आई थिंक सबके पास कोई ना कोई, एवरीबॉडी हैज एन हॉबी. कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी सिली सी चीजें हो सकती है, बट देन यू शुड हैव एन हॉबी सो दैट यू कैन डाइवर्ट योर माइंड. Ma'am, sketching and writing. yes, whatever gives you pleasure, do. गाने सुनो, novels पढ़ो, whatever you want. But then at that moment of time, जब आपको लग रहा है डिप्रेशन आ रहा है, बस वो टॉपिक से हट जाओ और spend your time मतलब thinking on positive aspects. मैम एक कॉमन सा क्वेश्चन है मैम. Yes, पलाश. हाँ Yes. बोल, मतलब मैम एक पेरेंट्स, मेरे पापा जो है, तो एक बार मैम ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि पापा बोले थे बेटा टेंशन नहीं लोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे करके. जबकि मैम एक बार मैंने यूट्यूब में विवेक बिंद्रा का वीडियो देखा था चाणक्य के ऊपर, तो मैम उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक एग्जांपल दिया था कि Yes. मैम उन्होंने कांटे का झाड़ रहता है, उसमें एक बार उनको पैर में चुभ जाता है वो कांटा, तो मैम हाँ, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि अगर कोई और भी चलेगा तो उसको भी चुभ जाएगा. बिल्कुल. ओके. तो मैम वो क्या करते हैं कि वो एक मट्ठा खरीदते हैं, इंस्टेड कि वो पीने से अच्छा उन्होंने वो मट्ठा जो है वो झाड़ के अंदर डाल देते हैं मैम. वो मतलब जो पेड़ ओके. रहता है कांटे का, जो छोटा सा पौधा रहता है उसमें डाल देते हैं. तो मैम उसमें क्या हो जाता है कि जो जितनी भी चींटियां रहती है ना नीचे से, वो पूरा पेड़ मतलब नीचे से खा जाते हैं मैम. तो शिष्य वही पूछते हैं कि गुरुजी आपने ये मट्ठा पीने से अच्छा है, आपने वो पौधे में क्यों डाल दिया ये. हम्म. तो मैम उधर उससे तो एग्जांपल समझ गया कि जो प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, अगर हम उस पे काम करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन डेफिनेटली. लेकिन पापा को समझा, पापा बोले कि बेटा थोड़ा सा टेंशन तो मतलब, फिर मैं पापा को बोला कि टेंशन नहीं लेंगे तो ही थोड़ा कुछ हो सकता है, तो उसके नहीं, कारण मैम. पापा गलत नहीं है पलाश. पापा का तो कहना है कि प्रेशर इंपॉर्टेंट है लाइफ में. जब तक आप टेंशन नहीं लेंगे ना, आप एक्शन नहीं कर पाएंगे. जैसे कि आज मेरा यहाँ लेक्चर है, ठीक है, लिया मैंने. मुझे थोड़ा यदि प्रेशर, मतलब इन द सेंस टेंशन है कि बनाना है स्लाइड्स में, यदि जब तक वो टेंशन नहीं आएगा ना, अच्छी चीजें नहीं होंगी. बट टेंशन का मतलब ये है कि इतना टेंशन नहीं ले लेना है कि और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं. आपको डिसाइड करना है, लिटिल टेंशन इज इम्पोर्टेंट, लिटिल प्रेशर इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ टू गो कीप यू गोइंग थ्रू आउट. थोड़ा सा टेंशन क्रिएट्स पॉजिटिव स्ट्रेस. यस. यस सर, थैंक यू सर, मैत्री सर. इट क्रिएट्स, जब तक टेंशन नहीं लेंगे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी. ओके, बट कितना लेना है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए टू कीप यू गोइंग, दैट इज ऑल अप टू यू. मैम होता क्या है कि मैम मतलब मैंने ऐसा देखा है कि मैं एक स्टूडेंट, मैं एथलीट भी हूँ मैम. कंपटीशन में आता हूँ मैम, तो ऐसा देखता हूँ कि यार ओके मैं उतरा तो हूँ, पर मैं प्रिपरेशन के कारण थोड़ा सा एक नर्वस हो जाता हूँ कि अब क्या होगा, मैं सिलेक्ट होऊंगा क्या. तो मैम उसके कारण भी जब मैं ओवर टेंशन करता हूँ तो मैम मेरी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी ये हो ब्लॉक हो जाती है. जाती है. यस, हाँ ओवर थिंकिंग इज बेसिकली स्ट्रेस आ रहा है ना. फिर स्ट्रेस कितना लेना है ये आप पर डिपेंड है. बट जब तक लाइफ में स्ट्रेस आप नहीं लेंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी. और वो पॉजिटिव स्ट्रेस होना चाहिए, जैसे सर भी बता रहे हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस लीजिए. कितनी मात्रा में स्ट्रेस लेना है ये आपने डिसाइड करना है. बट यस, योर फादर वाज नॉट रॉन्ग. इट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ टू कीप यू गोइंग. यस पलाश. ओके, थैंक यू मैम. यस.
Any more questions anybody is having here? Hello, ma'am. Yes. How you pronounce your name? Advitiya. Okay, yes. Advitiya. Wow, nice name. Thank you, ma'am. Ma'am, I would like to ask your opinion on this thing I read earlier, that if you can't reach to a positive place suddenly out of a negative place, then at least reach a neutral space and then start building it from there. What is your opinion on this? If you can't, come again, please. For example, that person, for example, a person is in a negative place and Yes. suddenly making the jump to a positive place is difficult for them. So the writer, the author was saying कि at least reach a neutral state. Okay, yes. न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि जब तक आप न्यूट्रलाइज नहीं करोगे, अभी तक वो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स में था. यू हैव टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज हिम एंड देन ओनली. जैसे हम एक स्लेट है, यदि स्लेट पूरी भरी है, हमें उसे और लिखना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्लेट को मिटाना पड़ेगा. मिटाना पड़ेगा. जो थॉट्स अभी तक हमारे अंदर थे, नेगेटिव थे, उस स्लेट को मिटाना पड़ेगा और फिर उसमें हम नए सिरे से लिख सकते हैं. राइट? So Yes, basically the author wants to say here कि जो भी अभी तक नेगेटिव चीजें हैं, उसको न्यूट्रलाइज करके उसको मिटाना पड़ेगा. Then only you can imbibe, you can inculcate positive thoughts in him. Okay? So yes, the author was correct. आपको पहले जो ऑलरेडी लिखा हुआ अनलर्निंग बोलते हैं इसको, जो तक अभी तक सीखा है उसे अनलर्न करके देन यू कैन लर्न न्यू थिंग्स. अभी तक नेगेटिव यदि सोचा है तो उसको मिटाकर देन यू हैव टू स्टार्ट पॉजिटिव. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. I think any more questions here? Ma'am, I want to ask one last question, ma'am. Yeah, Palash, please. Ma'am, in life, if there comes a situation that I have assigned a task by my boss that you have to go in that one place. The selected group of people are facing the negative problems, and they are also facing negative negative problems only. So how can you motivate them? Negative thoughts हैं. Okay, हाँ, employees मतलब में. उनको मोटिवेट कैसे करूँ और उनको कैसा बताओ कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, आपको अपने हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए. तो मैम वो ऐसे कौन से स्टेप्स लो जिससे वो लोग मतलब उधर के जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो मोटिवेट हो जाए मैम. You have to set an example. आप खुद यदि if you are a team leader, यदि लीडर पॉजिटिव है तो वो जो मोटिवेशन होता है ना वो फॉलोअर्स तक भी जाता है. ओके तो यदि आप खुद में पॉजिटिविटी है यदि आपके अंदर तो डेफिनेटली वो पॉजिटिविटी आप दूसरों तक पहुंचा सकते हो. Talk positive things in front of them whenever you are talking to them, when you are addressing to them. Okay, I know this is a marketing scenario. जब यदि सेल्स के लोग हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है, बम्बार्डिंग होती है, टारगेट्स होते हैं, but then at the same time यदि लीडर पॉजिटिविटी है तो that positivity will definitely percolate to the followers as well. Okay, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, तभी वो आपको आइडियल मानकर आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे. I think I've answered, Palash. यस मैम. एंड मैम अगर समझ लो उसमें जो मेरा असिस्टेंट या जो भी रहेंगे मैं असाइन करूंगा मैम. कभी कभी मैम ऐसा मैंने मूवीज में भी देखा है कि कभी कभी जो असिस्टेंट या आर्मी मैंने मूवीज में भी देखा, वो बोलते हैं कि सर अब ये नहीं हो पाएगा करके. Okay. सर अब ये सिचुएशन, सर ये एक सिचुएशन आई है, पर सर ये सिचुएशन बहुत, हम इसको एक मैटर तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर, ऐसा मतलब वो ऐसा. तो मैम तब क्या करेंगे मैम? देखो उन्होंने यदि बोला है कि स्किल्स मतलब ये सिचुएशन हमारे बस का नहीं है तो इट विल बी, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने स्किल नॉलेज है ऐसे एटीट्यूड की बात नहीं. इट इज बेसिकली रिसोर्स क्रंच हो रहा है शायद. ओके कि हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है कि हमसे ये काम हो जाएगा. इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एटीट्यूड हियर. ओके मे बी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो आ रही होंगी. ओके जैसे आप बोल रहे हो आपने पिक्चर मूवीज में देखा है. इट इज एक्चुअली नॉट पोर्ट्रेइंग अ नेगेटिव एटीट्यूड.
कुछ तो भी रिसोर्स क्रंच हो सकता है वहां पर, या फिर हो सकता है कि उतना अच्छे से प्लानिंग नहीं करी हो चीजों की एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, बट हम जब ऐसे आर्मी ऐसी बात करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। ऐसे तो फिर कोई भी छोटा सा भी हमारे पास यदि टास्क दिया है दैट विल बी डिफिकल्ट इन दैट केस। ओके, तो एटीट्यूड जरूरी है, साथ में आपके साथ जो एसोसिएटिंग फैक्टर्स हैं वो भी होने चाहिए। एटीट्यूड इज देयर जो हमारे अंदर है, हमारी पॉजिटिविटी बताता है। ओके, बट जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स है दैट शुड आल्सो बी सपोर्टिव। ओके मैम। ओके, And I there think is that's one last question in the chat box. The girl's microphone is not working. She has said how to keep that stable mindset when going through facing the hard times in the process of achieving the defined goal. how to have a positive mindset while While going achieving. through a hard time. ओके, हार्ड टाइम्स हर की लाइफ में आता है, दैट इज एन इनविटेबल फैक्टर, वो हर की लाइफ में आता है, वो आएगा ही। आप अपने आप को उस समय कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं इज इन्वॉल्व पीपल हु हैव पॉजिटिव, मतलब जो आपको लगता है मम्मी से बात करने से अच्छा लगे जाएगा, या अपने कोई खास फ्रेंड से बात करने में अच्छा लग जाएगा आपको लगेगा, या परस्यू अ हॉबी। ओके, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये सारे फैक्टर्स से आपको पॉजिटिविटी आएगी। आप डिफिकल्टीज को अवॉइड नहीं कर सकते, ये हर की लाइफ में है। मेरे लिए 10% है, मतलब कुछ किसी की लाइफ में कम होता है, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा एडवर्सिटीज होती हैं। ओके, बट ये आपका नजरिया है कि आप उसे कैसे डील करते हैं। हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलेंगे, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, तो इससे हल नहीं निकल सकता। बट यू हैव टू engage yourself in things that gives you pleasure. Talk to your friends, involving activities that makes your mind मतलब कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है puzzle solve करते हैं when they are under stress. कुछ लोग होते हैं cube solve करते हैं when they are under stress. Okay, तो you have to divert your mind. थोड़ा stress जैसे अभी बोला गया, yes, is important to keep you going throughout life. But atrocities हमारे रहने या करने से नहीं होती, मतलब इट इज देयर। यस, सर भी कुछ बोल रहे हैं, मैत्रे सर। संघर्ष, एवरी टाइम रिमेम्बर योर ओन नेम। अच्छा, Yes, her name is Sangharsha. So sir is telling remember your own name. Yes. Sangharsh. Yes, okay. तो संघर्षा, the name itself, it's very innovative name. Yes, so बस संघर्ष करना है लाइफ में, that is the only motive. Okay, हम सभी संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं to survive. Yes, अभी friend, yeah, Asmita. Yes, ma'am. Exercising and meditating help to keep our mind positive. Yes, it's very important. At your age, I don't know how many do meditation. How many pursue meditation here? You do? Any type of exercise is important, but Yes, ma'am. yes, okay, that is Yes, good. Very nice. Pursue yoga as well. It is very good. Meditation is very important to keep your mind calm. Okay, so yes, it is one of the way to reduce stress. Definitely, Asmita. Thank you, ma'am. Yes, thank you. So I guess all the questions are done with. If we still have any further questions, ma'am, we'll definitely get back to you. Yeah, but thank you so much, ma'am, for giving your valuable time and such an insightful session that you have given today on attitude and self-perception. So on behalf of SBCT College and all the participants, thank you so much, ma'am, for being here with us today and guiding all the students. Hope to see you soon, ma'am. Thank you, Mukti ma'am. And thank you, Maitre sir, for giving me an opportunity here. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot. It was a lovely session, very nice audience. They all interacted and a lot of queries. I enjoyed the session personally, ma'am. Thank you. Great, ma'am. Thank you so much. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Shall I leave? Thank you, ma'am. Yeah, thank you. All the participants now have to visit their Google Classroom. The video for today has already been uploaded, and so has the self-assessment test.
Go ahead, watch the videos and do the test and post the answers on Google Classroom. We meet again at 3:45 for discussion, and if any doubts, they can be solved at that point of time also. All right, people. Bye-bye. Take care.